Everyone, welcome to class 8. Today we are starting our new topic, that is fundamental rights. Fundamental rights में आज हम एक right पढ़ेंगे, right to equality. But as I told you in my previous video that I will tell you how many articles, parts, schedules and amendments exist in our Indian Constitution, that I will tell you first. So at present, Constitution of India has 448 articles which are written in 25 parts. And how many schedules are there? 12 schedules. And how many amendments have been made up to January 25, 2020? They are 104. And please note down, the first amendment in the Constitution was made in 1950. So fundamental rights are included in part 3rd of the Indian Constitution. These are called fundamental because neither the legislature nor the executive can override them. And these are the rights, these are the 6 fundamental rights which are provided by our Indian Constitution. Directive Principles of State Policy, जिनको हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, these are included in part 4th of the Indian Constitution and it contains articles from 36 to 51. The Constitution of India contains 20 directive principles of state policy. अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट देखते हो तो इसमें आपको कितने प्रिंसिपल्स मिलेंगे? 20 प्रिंसिपल्स मिलते हैं, राइट. These principles aim to create social and economic condition under which the citizens can lead a good life. They provide basic facilities like shelter, food and clothing. So let us understand what are fundamental rights. These rights are regarded as basic human rights and are available to all citizens irrespective of their caste, color, race, religion or gender. They are based on the Universal Declaration of Human Rights, which was adopted by United Nations in 1946. Now let us discuss its first article, that is Article 14. It establishes the rule of law. What is rule of law? There was one person whose name was A.V. Dicey, and he has written one book, The Constitution of England, in which he mentioned rule of law. According to this, any person, whoever the person, whether Prime Minister, President, Constable or you or me, perform any act which is not legally justified, the law will treat everyone similarly. कहने का मतलब ये है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कुछ भी ऐसा एक्ट हम परफॉर्म करते हैं जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है, तो लॉ हम सबको सिमिलरली ट्रीट करेगा. ठीक है, यानी यहाँ पर लॉ को हमने सुप्रीम रखा है. यहाँ पर गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे लॉ सुप्रीम है. सो यहाँ पर हम की टर्म देख सकते हैं, अ सिस्टम इन विच द कंट्री इज रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉज. जहाँ पर कंट्री जो है किसके ऊपर रूल हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉज फ्रेम्ड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. जो लोगों ने ही जो लॉज बनाए हैं उसके ऊपर पूरी कंट्री रूल हो रही है. ठीक है, नॉट बाय द विशेस ऑफ अ पर्सन इन अ पावर. कोई पर्सन अगर पावर में है उसकी विश से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. जो रूल्स बनाए गए हैं उसके बेसिस पर हम पूरी कंट्री को क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं. इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें हम लेडी ऑफ जस्टिस जब देखते हैं तो शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड. ठीक है, मीन्स इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरी वन इज़ इक्वल वेदर while giving judgment, no rich or poor will be considered. Here we have finished Article 14. Let us discuss Article 15. It prohibits discrimination on the basis of these grounds. ये क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है. किस ग्राउंड्स पर? 5 ग्राउंड्स पर. नंबर 1 रिलीजन, नंबर 2 रेस, नंबर 3 कास्ट, नंबर 4 सेक्स एंड नंबर 5 POB. POB मीन्स प्लेस ऑफ बर्थ. द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 16, जिसमें लिखा हुआ है कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा. किसके मैटर्स में? इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट. ठीक है, बट समटाइम व्हाट हैपन, एज आई शेयर्ड वन इमेज. आप इमेज में देखो, आई हैव ड्रॉन वन डायग्राम. छोटा सा इमेज में डायग्राम है, उससे मैंने दिखाया है आपको स्टेट है और वो बैकवर्ड एरियाज़ है. कभी कभी क्या होता है, स्टेट में कुछ एरियाज़ होते हैं जो बैकवर्ड यानी पीछे रह जाते हैं, प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती. ठीक है, तो हम इनको कह रहे हैं बैकवर्ड एरियाज़. ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो यहाँ पर
इसमें आपके SCs और STs भी इंक्लूड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट ने क्या किया, दे हैव गिवन स्पेशल प्रोविजंस, दे मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या किया पार्लियामेंट यहाँ पर, क्या करती है कि इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इनके लिए सीट्स रिजर्व कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनका भी क्या हो सके, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो चुके। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि सोसाइटी में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, ये सब क्या थे, इनके साथ बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स थे, ठीक है, एजुकेशनल बैरियर्स थे, इनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में वो राइट्स नहीं दिए गए थे जो बाकी लोगों के पास राइट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि सोसाइटी में अगर स्टेट में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सबके लिए क्या होगी, इक्वल जो है इक्वली अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट क्या लेकर आई, पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आई रिजर्वेशन का, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, जिससे कि इनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों ही क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। नो नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 17 विच अबॉलिश द कंसेप्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो थी एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जहाँ पर लोग क्या करते थे, एक ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते थे, ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें लोगों को राइट्स नहीं थे कि वो विलेज के अंदर एंटर कर सकें, टेम्पल्स का वाटर, टेम्पल्स में एंट्री मिले, या जो वेल्स होते थे उनका पानी यूज़ कर सके। तो इन सबको विलेज से या सोसाइटी से क्या रखा जाता था, अलग रखा जाता था। दीज पीपल वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल। तो जब इसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी है कि इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस दैट इज़ पनिशेबल बाय लॉ। इसमें ही कहा है कि अगर कोई इस प्रैक्टिस को ऑफेंस डिक्लेयर करने के बाद भी फॉलो करता है ऐसी प्रैक्टिस को अपनी सोसाइटी में, तो वहाँ पर उसको क्या दिया करा जाएगा, ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18, इट अबॉलिश ऑफ टाइटल्स, ये टाइटल्स का अबॉलिशन करता है, एक्सक्लूडिंग एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स। लेकिन जो एकेडमिक होते हैं जैसे डॉक्टरेट हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, ये वाले टाइटल्स को एक्सक्लूड करता है। और जो मिलिट्री टाइटल्स हो गए जैसे ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया, ऐसे तो टाइटल्स को आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे। लेकिन जो ब्रिटिश से या जो फॉरेन कंट्री से हमें टाइटल्स मिलते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनका हम अबॉलिश कर रहे हैं। ये दोनों पर जो है अप्लाई होगा वेदर दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल 4 आर्टिकल्स फ्रॉम 14 टू 18। 14 में क्या था, रूल ऑफ लॉ। 15 में क्या था, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड डिस्कस कर लिए थे हमने, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 क्या था कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन इन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद था आपका आर्टिकल 17 जो एबॉलिश करता है किसको, अनटचेबिलिटी को, उसको ऑफेंस मान रहा, ऑफेंस या क्राइम कह सकते हो आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका 18 जिसमें हमने क्या किया है, एबॉलिश किया है प्रैक्टिस ऑफ कॉन्फरिंग टाइटल्स, ठीक है। हमने ऐसे टाइटल्स और ऑनर्स को हम एबॉलिश कर रहे हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेन कंट्री से मिलते हैं।